हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो फाइनली आई हैव ऑन ऑल योर रिक्वेस्ट्स, एक्चुअली मेनी स्टूडेंट्स वर रिक्वेस्टिंग मी टू upload videos and explain Oliver Twist. So finally I have brought I've started this explanation on Rapid Reader Oliver Twist. Okay, and I will be like combining two chapters, three chapters, and explain you. Okay, and I will cover up only the important things, only those points which are important. ठीक है, जो जो important है मैं उन्हीं points पे जो है मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ताकि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस है, ओके, यू कैन आंसर to the reference to the context type questions. Because now, as you know, that if you see the question pattern, I've uploaded 2019 and 20 question papers. If you see the question pattern from Rapid Reader section, अगर आप Rapid Reader section से Oliver Twist section से अगर आप चेक करें, तो it comes in the form of reference to the context. Okay, it comes in the form of reference to the context, RTC. ऊपर जो है there will be like 2 lines from the text, and then below there will be 3 questions. Okay, so 7 marks, and you have like option, you can write any one. You have choice, you can write any one. So you'll be given two questions, and out of 2 you have to write any one broad questions. So it is not like broad question, it is like RTC only. ये जो है ये reference to the context type ही अभी जो है ये pattern है. Okay, so anyways, so I have combined chapter 1 and chapter 2 here. तो मैंने basically chapter 1 और chapter 2 को combine करके जो है I have bought the first video. Okay, and it will continue like that. You have total of 18 chapters. ठीक है, तो कहीं कहीं हो सकता है मे बी समवेयर आई विल बी लाइक कंबाइनिंग 3 chapters also together and cover up only the important points. Okay, not everything is important, but I will cover up the important things, so that you'll be able to answer to the questions. Okay, anyways, so Oliver Twist is written by Charles Dickens, and today I will be discussing in this video, I will be explaining you chapter 1 and chapter 2 today. Okay, so all of you can sit with your textbooks. Okay, so let's start. So chapter 1 first. Okay, I have divided the chapters, don't worry, I won't mix chapter 1 and 2 together. I have divided the chapters. So chapter 1, let us see chapter 1. Chapter 1 will be little long. So in 1837, actually in the book it is about 1837, so not exactly 1837. Okay, so if you are asked in the exam that when in which year was Oliver Twist born, you say about 1837. तो उसका जन्म जो है वो 1830s में हुआ था. तो we don't actually know, it is like an assumption that around 1837, okay, Oliver Twist was born in a certain English town in a local poor house. ठीक है, तो पोर हाउस क्या है आप पेज 97 में जाके एक बार देख लीजिए. यू कैन गो टू पेज 97 एंड सी. आपको पोर हाउस जो है इन पेज 1 यू विल फाइंड देयर इज अ स्मॉल एस्ट्रिक्स, ऐसे स्टार मार्क है पोर हाउस के ऊपर. तो इफ़ यू गो टू पेज 97 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, यू विल फाइंड द ग्लॉसरी एंड नोट सेक्शन, यू विल फाइंड द मीनिंग. ओके, बट स्टिल आई एम रीडिंग आउट फॉर यू. पोर हाउस इज़ अ हाउस ऑफ शेल्टर फॉर पोर पीपल. तो पोर हाउस जो है एक ऐसा शेल्टर हाउस है, एक ऐसा घर है जहाँ जो है गरीब लोगों को रखा जाता है, गरीब लोगों को पनाह दिया जाता है, शेल्टर दिया जाता है. और जो खाना पीना इन लोगों को मिलता है वो एक्चुअली पैसा जो है, द मनी इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक फंड्स, मतलब गवर्नमेंट फंड्स एक्चुअली. तो गवर्नमेंट से जो पैसा आता है उन्हीं पैसों से जो है ये पोर हाउस चलता है, और बेसिकली यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं. ठीक है, तो गवर्नमेंट मनी से जो है ये पोर हाउस चलता है. ओके, सो पेज 97 यू कैन जस्ट गो एंड चेक. सो ऑलिवर ट्विस्ट का जन्म हुआ था कहाँ पे? ऑलिवर ट्विस्ट वॉज बॉर्न इन अ सर्टेन इंग्लिश टाउन. अब एग्जैक्टली वेयर ही वॉज बॉर्न वी डू नॉट नो, बट इन अ सर्टेन टाउन इन इंग्लैंड. इंग्लैंड के एक सर्टेन जगह में जो है ऑलिवर ट्विस्ट का जन्म हुआ था. एंड वेयर इन अ लोकल पूर हाउस, तो एक लोकल पूर हाउस में उसका जन्म हुआ था. इन विच ईयर एग्जैक्टली नॉट गिवन, बट अराउंड 1837. नेक्स्ट पॉइंट, द डॉक्टर एंड द नर्स डिड नॉट केयर मच फॉर ऑलिवर ड्यूरिंग हिज बर्थ बिकॉज दे वेर पेड वेरी लिटिल. तो डॉक्टर और नर्स जो है जिसने Oliver को when his mother was giving birth to Oliver, the doctor and the nurse of that poor house, they were actually doing the delivery process. They were doing the delivery process. So doctor and nurse did not take care of Oliver much during his birth because they got very little salary. तो उनको बहुत कम salary मिलता था, and they were like heartless creatures. These doctor and nurses, they don't have a heart actually. They are heartless creatures. बिल्कुल वो kind नहीं है. They are very unkind actually. Okay,
एंड काइंड ऑफ करप्टेड ऑल्सो। ठीक है, ये डॉक्टर और नर्स जो ये पैसे के लिए काम करते हैं, दे डोंट वर्क फॉर सिंपैथी और एम्पैथी, दे वर्क फॉर मनी ओनली। पैसा मिला तो काम करेंगे, अगर कम पैसा मिलता है, इफ दे गेट लिटिल मनी दे वोंट वर्क, सो दे डोंट केयर मच अबाउट देयर प्रोफेशन बिकॉज दे आर पेड वेरी लिटिल एंड दे आर करप्टेड। ओके, क्योंकि जो पैसा आता है गवर्नमेंट से, जो पैसा आता है तो उसका जो है 70% पैसा, 70% ऑफ द मनी गोज इन साइड देयर पॉकेट्स ओनली। ओके, एंड वी विल लर्न मोर अबाउट दिस। ठीक है, तो डॉक्टर एंड नर्स डिड नॉट टेक केयर ऑफ ऑलिवर मच बिकॉज दे रिसीव वेरी लेस सैलरी। तो वाई शुड दे वर्क हार्ड when they're getting less salary? Anyways, so Oliver's mother was on her deathbed. So Oliver's mother's condition was very bad and she was about to die actually. And before dying, she said, "Let me see the child and die." तो जन्म देने से पहले जो है, ऑलिवर को जन्म देने से पहले Oliver's mother was in a very bad condition, and just before her death, Oliver's mother said that मुझे अपने बच्चों को एक बार देखना है, and then I will die. Okay, and then I wish to die, not before that. Let me see my child. तो ये जो है ये this is the line from your textbook. Now the doctor advised her that she should not talk about death. तो डॉक्टर ने ऑलिवर की मम्मी से कहा कि आप इतना बात मत कीजिए, और आप डेथ के बारे में डोंट टॉक अबाउट डेथ। ओके, डोंट टॉक अबाउट डेथ, यू विल बी ऑल राइट, समथिंग ऐसा कुछ कहा। ठीक है, बट एक्चुअली द डॉक्टर डिड नॉट टेल इट सीरियसली। वो तो उसका एक हैबिट है, इट्स जस्ट अ हैबिट ऑफ द डॉक्टर टू टेल लाइक दैट। शी सेड, अरे व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट डेथ, डोंट थिंक अबाउट डेथ, डेथ के बारे में मत सोचिए। द नर्स हु वॉज नॉट काइंड एट ऑल told her that she must wait till she has 13 children like the nurse, and 11 had died in front of her eyes. तो क्या हुआ, तो नर्स ने फिर कहा, the nurse then said, the nurse told Oliver's mother, नर्स ने फिर ऑलिवर के मम्मी को कहा कि अरे अरे नो नो, डोंट डाई नाउ, डोंट डाई नाउ, वेट टिल यू हैव 13 चिल्ड्रन एट लीस्ट। तो आप वेट कीजिए, जब तक आपका 13 बच्चा नहीं होता तब तक आप मत मरिए। ठीक है, लाइक इट हैपन विथ मी, nurse is telling, like it happened with me. I had 13 children and 11 of them had died in front of my eyes. तो मेरे जो है 11 बच्चे थे और 13 बच्चे थे, and out of those 13 children 11 had died in front of my eyes. तो why are you talking of death so soon? Don't talk of death. Death के बारे में इतना मत सोचिए। ठीक है, anyways, तो Oliver's mother then asked for the baby Oliver. So the doctor handed over the baby to Oliver's mother, and Oliver's mother held the baby Oliver in her hands, and she hugged her, and Oliver's mother died instantly. So Oliver now had become an orphan. तो Oliver जो है वो अनाथ बन चुका था। Oliver had become an orphan because he did not have father also, and mother also died now. ठीक है, तो regarding the name of Oliver's mother, it is not mentioned in the beginning chapters. तो beginning के chapters में Oliver's mother's name को जो है mention नहीं किया गया है. It is revealed at the end. तो वो end में जाके reveal होता है, and that we will discuss. Don't worry, slowly हम लोग progress करेंगे. It's a very interesting story, an emotional story. We will have a kind of an analysis also after we finish the story. और जैसे जैसे कहानी बढ़ता जाएगा, I will be going on explaining you more and more. So please pay attention to the video and watch the full video. तो no one in the poorhouse knew about the women. तो women मतलब यहाँ पे Oliver's mother. Oliver's mother. Okay. Oliver's mother. So no one in the poorhouse, doctor, nurse, other nurses, other people in the poorhouse, other workers in the poorhouse, they did not know anything about Oliver's mother because the old woman said that there is a old woman in the poorhouse. एक जो बूढ़ी करके एक महिला थी उस poor house में काम करती थी. She said that Oliver's mother had come there last night and was found lying in the street. तो एक बूढ़ी जो औरत है, one old woman said that अरे I saw this lady, Oliver's mother, I saw this lady lying in the street and it was last night. तो कल का रात जो है वहाँ पे मैंने देखा कि ऑलिवर्स मदर को जो है एक हमारे जो पोर हाउस का जो नीचे जो स्ट्रीट है, द स्ट्रीट नियर आवर पोर हाउस, वी फाउंड दिस लेडी देयर लाइंग इन द स्ट्रीट एंड देन वी बॉट हर इन द पोर हाउस. ओके, एंड दे डिड नॉट नो फ्रॉम वेयर शी हैड कम एंड टू वेयर शी वॉज गोइंग. तो किसी को नहीं पता फ्रॉम वेयर ऑलिवर्स मदर हैड कम, कहाँ से ऑलिवर की मम्मी आई थी, कहाँ उसको जाना था, किसी को नहीं पता. नो बडी नोज. ओके, द डॉक्टर देन नोटिस्ड ऑलिवर्स मदर्स लेफ्ट हैंड. तो डॉक्टर की मम्मी डॉक्टर ने जो है ऑलिवर की मम्मी का लेफ्ट हैंड नोटिस किया. तो ऑलिवर्स मदर वॉज डेड. ऑलिवर्स मदर वॉज ऑलरेडी डेड. तो द डॉक्टर वॉज इंस्पेक्टिंग. तो वाइल इंस्पेक्टिंग शी
he saw the left hand of Oliver's mother. There was no wedding ring. ठीक है, इसका मतलब द डॉक्टर अंडरस्टूड दैट शी वॉज एन अनवेड मदर. मतलब Oliver's mother did not marry because there was no wedding ring. Oliver's mother did not marry. She did not have a wedding ring. She had an affair. Maybe the doctor said maybe she had an affair with somebody, and from that man, you know, Oliver was born. Okay, so she was an unwed mother. She was not married, but she gave birth to a baby. Okay, because of the affair, we call it illegitimate affair. Okay, illegitimate affair. हिंदी में आपने एक वर्ड सुना होगा ना, नाजायज़ औलाद. ठीक है, illegitimate affair. Okay, so because Oliver's mother had an illegitimate affair with somebody, so that man did not marry and Oliver was born. Anyways, so the doctor laughed actually. Haha, ये तो रोज का घटना है. She did not marry. She does not have a wedding ring, and like she gave birth to a baby, and she died now. Now, Oliver's name was actually given by Mr. Bumble. So Oliver was given the surname Twist. तो Oliver का टाइटल जो है वो ट्विस्ट कैसे हुआ? How did Oliver get the name Twist? He got the name Twist from Mr. Bumble. Okay, Mr. Bumble is the town beadle. इसका भी आपको ग्लॉसरी में मीनिंग मिल जाएगा. बीडल मतलब एक जो है पैरिश ऑफिशियल होता है. ओके, ही इज़ अ रिलीजियस काइंड ऑफ एन ऑफिशियल, and he was in charge. आप लोग ये समझ लीजिए that Mr. Bumble was the in charge of the poor house. तो वो poor house का जो है हेड नहीं, in charge था. ओके, उसको रिपोर्ट देना होता था गवर्नमेंट को कि poor house में क्या क्या हो रहा है, what are the things happening in the poor house. Mr. Bumble is supposed to give the report to the government. So he was in charge of the poor house, kind of a headmaster. Anyways, so Mr. Bumble gave the name Twist to Oliver. Now, how did he give the name Twist? It is often asked in the exam. He named it in an alphabetical order. तो A, B, C, D करके 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 L, M, N, O, P, Q, R, S से आया. फिर T से जब आया, then already till S all the surnames were given. Now T was remaining. So he suggested the name Twist. ठीक है. अगर फिर कोई बच्चा है, इफ़ अनदर ऑर्फैन चिल्ड्रन कम्स, फिर टी के बाद शायद यू से नाम होगा, फिर वी से नाम होगा. ओके, इट विल कंटिन्यू लाइक दैट. ओके, सो ही वॉज गिवन द सरनेम ट्विस्ट विच वॉज केप्ट इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो मिस्टर बम्बल वॉज अ फैट मैन एंड वॉज क्वाइट पावरफुल एज अ बीडल. तो मिस्टर बम्बल वॉज अ वेरी फैट मैन एंड ही वॉज क्वाइट पावरफुल एज एन इंचार्ज ऑफ द पोर हाउस. ही वॉज क्वाइट पावरफुल. तो people of the poor house used to listen to Mr. Bumble, and in case if any kind of problems occurred in the poor house, they used to call Mr. Bumble. Okay, every time they used to call Mr. Bumble for solution. And Mr. Bumble ill-treated and starved the poor house children. तो Mr. Bumble जो है, he was very unkind to the poor house children. जितने भी अनाथ बच्चे थे, all the orphan children, Mr. Bumble treated them very badly. And Mr. Bumble also did not give them enough food to eat. Okay, starving मतलब not giving enough food. तो enough food उन लोगों को नहीं मिलता था. ठीक है, this Mr. Bumble did. And क्योंकि because he treated them very unkindly and he did not give them enough food, that is why several children died due to malnutrition. तो बहुत सारे बच्चों को जो है क्योंकि खाना फुल नहीं मिलता था, they did not get full meal. Okay, because they did not get full meal, so many children died due to starvation and malnutrition. Okay, खाना कम मिलता था. Okay, so Mr. Bumble would then tell all lies to the jury. तो जब inquiry बैठता था, when an inquiry used to sit and the government officials used to ask, अरे how come so many children they are dying, you're not, Mr. Bumble, you're not taking care of the poor house. Then Mr. Bumble would tell all the lies. No, I'm taking care of them. And like he would make up stories. Mr. Bumble जो है वो झूठा मोटा false stories का झूठा मोटा कहानी बना के जो है jury जो है मतलब a group of judges. ठीक है, jury group of judges. तो उन group of judges को Mr. Bumble used to explain and tell them all the lies. Okay, तो Mr. Bumble was never caught
तो ऑब्वियसली इफ़ ही वॉज नेवर कॉट, ही वॉज नेवर जेल्ड ऑल्सो, तो ज्यूरी जो है दे यूज्ड टू बिलीव मिस्टर बम्बल। तो मिस्टर बम्बल कभी भी पकड़ा नहीं गया और मिस्टर बम्बल को कभी भी जेल नहीं हुआ। ठीक है, तो इसी तरीके से चलता था पोर हाउस। द पोर हाउस वुड रन इन दिस वे ओनली। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नो, ओलिवर्स अर्ली चाइल्डहुड वॉज स्पेंट अंडर द केयर ऑफ मिसेस मैन। तो मिसेस मैन बोल के एक महिला थी। आफ्टर फ्यू days, Oliver was taken to Mrs. Mann's kind of an orphanage. Mrs. Mann used to run an orphanage. Let us put it in this way. तो मिसेस मैन जो है एक अनाथ आश्रम चलाती थी। एंड ओलिवर्स अर्ली चाइल्डहुड जो है, ओके, जब तक ओलिवर का 9 years नहीं हुआ, अनटिल ओलिवर रीच्ड 9 years, ओलिवर का पूरा चाइल्डहुड, द होल ऑफ द ओलिवर्स चाइल्डहुड वॉज स्पेंट अंडर द केयर ऑफ मिसेस मैन। नाउ केयर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वाई केयर वर्ड? मिसेस मैन नेवर टुक केयर। शी वॉज ऑल्सो अ करप्टेड लेडी। वो भी बहुत खराब महिला थी। शी वॉज अ वेरी बैड वीमन, अ वेरी बैड लेडी, एंड वी विल लर्न हाउ। मिसेस मैन वॉज अ वुमेन हु टुक केयर ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन। तो मिसेस मैन जो है, बेसिक मिसेस मैन, शी यूज टू रन एन ऑर्फनेज, जैसे मैंने आपको कहा अनाथ आश्रम शी यूज टू रन, एंड शी यूज टू टेक केयर ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन। जितने अनाथ बच्चे थे, ऑल द ऑर्फन चिल्ड्रन, मिसेस मैन टुक केयर ऑफ देम। नाउ शी डिड नॉट डू दिस फॉर फ्री, ऑब्वियसली। एवरीथिंग, यू सी, मनी स्पीक्स। मनी जो है, पैसा जो है वो बोलता है, मनी स्पीक्स। शी डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर फ्री, ठीक है ना। शी डिड नॉट गिव एनी सर्विस, शी हैड अ चार्ज, शी टुक मनी। एंड हाउ मच मनी? शी टुक 7 pence and half penny from the town authorities. तो टाउन अथॉरिटीज़ यहाँ पे गवर्नमेंट। सो शी टुक 7 pence and half penny, आप अमाउंट याद रखिए, 7 pence and half a penny from the government, from the town authorities, फॉर ईच चाइल्ड एंड ईच वीक। तो हर हफ्ता जो है और हर बच्चे के लिए वो 7 pence and half penny लेती थी। ओके, दिस इज हर काइंड ऑफ अ फीस। ओके, दिस वॉज हर फीस। और वो भी नॉट मंथली बेसिस, फॉर 1 child एंड फॉर 7 days, 1 week. हर चार्ज वॉज 7 pence, 7.5 penny, 7 pence and half penny. This was a charge. Now you see, there were many children under the care of man. So how much did she earn? You can just imagine. And she did this all for money, not for free. There was nothing called service. Service बोल के, humanity बोल के, kindness बोल के, there is nothing like kindness, humanity, nothing. She worked for money. पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। नाउ यू सी द मनी दैट शी गॉट, एक्चुअली अ मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द मनी शी यूज्ड फॉर हर सेल्फ। देखिए, सच अ बैड लेडी शी इज दैट वॉट एवर मनी शी गॉट, मैक्सिमम पोर्शन शी यूज्ड फॉर हर सेल्फ, नॉट फॉर द चिल्ड्रन। शी डिड नॉट फीड द चिल्ड्रन प्रॉपरली, शी डिड नॉट गिव फूड टू द चिल्ड्रन प्रॉपरली। वो कभी बच्चों को ठीक तरीके से खाना नहीं देती थी। शी डिड नॉट इवन प्रोवाइड देम गुड क्लोथ्स, हमेशा उनको डर्टी रखती थी वो। She always used to keep the children dirty. She never provided them good clothes. And that is why the children often fell, ill. तो बच्चे जो है वो बीमार पड़ते थे often, because first of all food is very important for a growing baby. For a growing baby, food is very important, isn't it? Food is very important and proper food is very important, right? But she provided very less food. And she did not maintain hygiene, and because of that the babies, the children, they used to fall ill and even die also. Many children died also. So you see, due to this, several children died because they did not get proper food. They were not properly washed. They did not receive good clothes, clean clothes. Their clothes used to be dirty all the time. So sometimes the town authorities would come for checking. समटाइम जो है वो टाउन अथॉरिटीज़ आते थे इंस्पेक्शन के लिए, फॉर इंस्पेक्शन, ओके, के वेदर एवरीथिंग इज वर्किंग और नॉट. सो गवर्नमेंट ऑफिसर्स वुड कम समटाइम्स फॉर चेकिंग, एंड दे वुड इन्फॉर्म मिस्टर बम्बल कि मिस्टर बम्बल, टुडे वी आर गोइंग फॉर चेकिंग टू मिसेस मैन्स हाउस, प्लीज़ इन्फॉर्म मिसेस मैन. तो मिस्टर बम्बल वॉज हिमसेल्फ करप्टेड. तो मिस्टर बम्बल तो हिमसेल्फ वो खुद करप्टेड था.
and he would go and inform Mrs. Man ki Mrs. Man, today the town authorities, the government people will be coming, so you be ready with the children, and today you give them good food, today you give them clean clothes, so that when the town authorities come they will be satisfied. तो उस एक दिन के लिए जो है, वेन एवर द टाउन अथॉरिटीज, वेन एवर द गवर्नमेंट ऑफिसर्स वुड कम फॉर चेकिंग, देन ओनली मिसेस मैन वुड क्लीन द चिल्ड्रन, ड्रेस देम अप, एंड द टाउन अथॉरिटीज वुड बी सेटिस्फाइड. तो कोई जब इंस्पेक्शन के लिए जाता है, यू थिंक दैट इफ समबडी गोज फॉर इंस्पेक्शन इट शुड बी अ सडन विजिट, बोल के कोई थोड़ा ही ना कोई इंस्पेक्शन के लिए जाएगा, वो सडनली आएगा, तब ना रंगे हो तो पकड़ा जाएगा, एंड देन ओनली दैट कल्प्रिट, दैट पर्सन विल बी कॉट रेड हैंडेड. बट इफ़ यू इन्फॉर्म एंड गो, आप क्या चोर को इन्फॉर्म करके, अब पुलिस अगर कल को अगर ऐसा हुआ, इफ पुलिस इन्फॉर्म्स द थीफ दैट थीफ आई एम कमिंग टू अरेस्ट यू, विल द थीफ रिमेन इनसाइड हिज हाउस? इज देयर एनी थीफ हु इज ऑनेस्ट? विल ही रिमेन इनसाइड द हाउस? हाँ, कम आई एम सिटिंग इनसाइड, ओ पुलिस मैन आई एम सिटिंग इनसाइड द हाउस फॉर यू, कम एंड अरेस्ट मी. Obviously not. The thief will run away. He'll find some ways to escape. So whenever a police is going to catch the thief, it should be sudden, right? So that the thief will not be able to run away. So here you see the town authorities are informing Mr. Bumble that Mr. Bumble, tomorrow we are coming for checking, so please inform Mrs. Man. And Mr. Bumble, he himself was corrupted, so he would go and inform Mrs. Man. And Mrs. Man, for that one day, Mrs. Man, to show that everything is okay, Mrs. Man ये दिखावा करती थी कि नहीं सब कुछ तो ठीक है, and she would clean the children, she would dress them up with good clothes, and the town authorities would come and see that oh no, everything is okay. Mrs. Man is running the orphanage, अनाथ आश्रम जो Mrs. Man चला रही है बहुत सही तरीके से चला रही है, she is running the orphanage very nicely, and they would be satisfied and they would go away. Okay, so here you see Charles Dickens has shown how much corruption was there in England. How much corruption was there in England. कुछ जगह पे थोड़ा ओवर दिखाया गया है. Charles Dickens has exaggerated, shown too much somewhere, but I think that too much was very important. That too much was very important because as the story progresses, you will yourself become very emotional that how a small boy, Oliver, how a small boy is tortured like hell. How a small boy like Oliver is tortured like hell. You will learn this slowly. And because of a corrupted governance, because of the corrupted authorities. Okay, ये हम लोग देखेंगे आगे कहानी में हम लोग देखेंगे ये चीज़. Anyways, so like all the orphan children, Oliver too grew very pale and thin due to lack of proper food and care. तो बाकी जितने orphan बच्चे थे, okay, same was the case with Oliver. Oliver grew very weak, very pale and very thin because he did not get proper food. He did not get proper care. There was no hygiene maintained. Okay, and you see now देखते देखते जो है by as time passed, Oliver was now 9 years old. तो Oliver का जो है 9 साल पूरा हो गया. He is now a 9-year-old boy. ठीक है, but very thin. एक 9 साल का बच्चा जो है, a 9-year-old kid should be very strong, but no, a 9-year-old kid as compared to the other 9-year-old child, Oliver was very thin because of the lack of food and care and even hygiene also. Now it was the day of his birthday. Oliver's birthday, that day was actually Oliver's birthday. तो उस दिन जो है Oliver का birthday था. तो on the day of his birthday, Oliver and 2 other boys were punished for being hungry. देखिए, can you punish somebody just because that person is hungry? कोई अगर भूखा है, आप किसी भिखारी को अगर रास्ते में देखें कि वो भूखा है, या किसी बच्चे को देखें आप, इफ़ यू सी अ स्मॉल चाइल्ड hungry on the street, will you give punishment to that child or will you offer him food? So here also Charles Dickens has brought this cruelty of the society. कि ओलिवर को एक दिन बहुत भूख लगा, तो ओलिवर may have said that sir, I am very hungry. Why? Now the master said, why did you use the word hungry? It is a crime to be hungry. क्या hungry होना crime है? तो he was punished and 2 other boys were also punished because they were hungry. तो उनका कहना था that the Mrs. Man and the other people who worked there in Mrs. Man's house, उनका ये कहना था कि whatever food we are giving you, be satisfied. जितना भी खाना तुम लोगों को दिया जा रहा है,
सेटिस्फाइड रहो, डोंट आस्क फॉर मोर, ज़्यादा मत मांगो, जितना दिया जा रहा है उतने में ही खुश रहो, एंड डोंट बी हंग्री, अगर भूख भी लगे डोंट से, बिकॉज इफ़ यू से इट विल बी अ पनिशमेंट, इट विल बी अ क्राइम एंड यू विल गेट पनिशमेंट फॉर दैट। तो उनको जो है पनिशमेंट मिला, ओलिवर एंड टू अदर चिल्ड्रन दे गॉट पनिशमेंट, एंड क्या पनिशमेंट मिला, व्हाट पनिशमेंट डिड दे गेट, दे वर बीटन एंड देन लॉक्ड इन अ कोल सेलर। तो उन लोगों को जो है बहुत मारा और उन लोगों को एक कोयले के जो है छोटे से एक कोयले का कमरा होता है, देयर इज अ स्मॉल रूम वेयर कोल्स आर केप्ट, ओके, एंड देयर ओलिवर एंड दोज टू चिल्ड्रन, दोज टू अदर बॉयज वेयर लॉक्ड इनसाइड। तो पहले मारा गया, फिर कोयले के कमरे में उन तीनों बच्चों को, ओलिवर और बाकी दो बच्चों को लॉक कर दिया गया, ठीक है, बिकॉज दे हैड कमिटेड अ, आई एम पुटिंग इट इन डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, दे हैड कमिटेड अ क्राइम। और क्राइम किया था, भूख लगना सबसे बड़ा क्राइम है। आप देखिए कौन सी सदी में हम लोग जी रहे हैं कि भूख लगना अब क्राइम बन चुका है, ठीक है। मिस्टर बम्बल हैड कम टू टेक ओलिवर बैक टू द पुअर हाउस, टू, क्योंकि ओलिवर का 9 साल कंप्लीट हो चुका था। नाउ ओलिवर वॉज क्वाइट बिग, ओलिवर वॉज क्वाइट बिग टू वर्क एक्चुअली। तो मिसेस बम्बल came to Mrs. Mann's place and said that I have come to take Oliver back to the poor house. Okay, and Mrs. Mann जो है she was shedding crocodile tears, मगरमच्छ के आंसू मतलब झूठा आंसू, false tears she was shedding because Oliver was leaving. Now she is not at all sad, वो दिखावा है, it is just like showing that, oh Oliver, you're going away from me, I will miss you very much and this and that, you know, Mrs. Mann was doing this kind of drama. बट इट इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स ड्रामा, ये एब्सोल्युटली झूठा ड्रामा है, कोई आंसू नहीं है, देर आर नो टीयर्स, देर इज़ नो इमोशन इन मिसेस मैन फॉर ओलिवर और फॉर एनी अदर चिल्ड्रन अंडर हर केयर, ठीक है। सो शी वॉज लाइक क्राइंग, सो मिसेस मैन गेव ओलिवर अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, तो मिसेस मैन ने ओलिवर को एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा दिया, एंड शी वॉज क्राइंग, ओके, and said that, Oliver, I will miss you, take this slice of bread, on the way you will be hungry, so eat this bread. She said all these things and Oliver left. Now Oliver was crying, and why Oliver was crying, and when Oliver was going, actually Oliver left in tears because he would miss his only friends that he had made so far. तो मिसेस मैन के जो ऑर्फेनेज में, इन द ऑर्फेनेज ऑफ मिसेस मैन देयर वर अदर चिल्ड्रन ऑल्सो, नो, देयर वर अदर बॉयज ऑल्सो। तो ओलिवर ने कुछ दोस्त बना लिए थे वहाँ पे, ओलिवर हैड मेड फ्यू फ्रेंड्स देयर। नाउ ओलिवर इज बीइंग टेकन बाय मिस्टर बम्बल बैक टू द पोर हाउस, तो नाउ ही लॉस्ट ऑल हिज फ्रेंड्स दैट ही हैड मेड सो फार इन मिसेस मैन्स ऑर्फेनेज। तो मिसेस मैन के ऑर्फेनेज में जितने भी दोस्त बनाए थे ओलिवर ने, उन सबको जो है छोड़ के ओलिवर को जाना पड़ रहा है अभी पोर हाउस में, बट बेचारा बच्चा करे भी क्या, व्हाट विल दिस पुअर बॉय ओलिवर डू, ओके। एंड यू सी नो वन हैड एवर स्पोकन अ वर्ड ऑफ काइंडनेस टू ओलिवर, किसी ने ओलिवर से कभी भी एक काइंड शब्द भी नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, नो वन हैड एवर स्पोकन इवन अ वर्ड ऑफ काइंडनेस टू ओलिवर। काइंडनेस दिखाना तो दूर की बात है, यू नो, शोइंग काइंडनेस इज अ वेरी डिस्टेंट थिंग। दे नेवर स्पोक टू ओलिवर इवन वन वर्ड ऑफ काइंडनेस, एक छोटा सा शब्द भी जो है काइंडनेस का, केयर का, ओलिवर डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट, ओलिवर डज नॉट नो द मीनिंग ऑफ लव, केयर, काइंडनेस। ओलिवर को इन सारे शब्दों का मीनिंग ही नहीं पता ये क्या है, बिकॉज ओलिवर ऑलवेज गॉट बीटिंग, ओलिवर गॉट स्कोल्डिंग्स, ओलिवर वॉज लॉक्ड इन साइड द कोल सेलर, ओलिवर रिसीव पनिशमेंट ऑल थ्रू द 9 years, जितने भी 9 साल है। तो उसको काइंडनेस, केयर, लव क्या है, ओलिवर डज नॉट नो एनीथिंग, ओके। एनीवेज आफ्टर अराइविंग एट द पोर हाउस द बोर्ड टोल्ड हिम, तो एक बोर्ड था, एक ग्रुप ऑफ पीपल था वहाँ पे, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, मेंबर्स, इनका एक ग्रुप था, बोर्ड। सो when Mr. Bumble brought Oliver to the poor house, the board told him that Oliver would be educated. अब educated का meaning भी यहाँ पे not the education that you think, पढ़ना लिखना है ना, studies, schools. No, education does not mean this. Education is something else here, okay? So the board of directors also, they are also fully corrupted and एकदम बकवास president, secretary वहाँ का जो है एकदम बकवास, okay? And they are fully corrupted. All the members are fully corrupted here. They only ate money. They only ate, food. They were, fat people. सारे मोटे मोटे लोग जो है भद्दा सा दिखने वाले, वो टेबल पे बैठ के सिर्फ खाना खाते थे,
एंड दे डिड नथिंग. ओके, तो द नेक्स्ट मॉर्निंग, जो अगला सुबह जो है, नेक्स्ट मॉर्निंग 6 AM अर्ली इन द मॉर्निंग, ओलिवर को कहा गया दैट ओलिवर, फ्रॉम टुमारो एट 6 AM इन द मॉर्निंग यू शुड स्टार्ट योर वर्क. और उसका काम क्या था? ऑफ पीकिंग ओकम. ठीक है, अब ओकम का मीनिंग क्या है? ओकम का मीनिंग फिर से आपका दिया गया है पेज नंबर 97 में. आई जस्ट रीड इट आउट. ओल्ड रोप्स अनट्विस्टेड टू लूज हेम्प. इसका मतलब मोटा मोटा रस्सिया होता था ऐसा, मोटा मोटा रस्सिया होता था ऐसा. तो इन रस्सियों को जो है सिंगल सिंगल शीट में, इट वुड बी लाइक एंटेंगल्ड. ये जो है सारी रस्सियाँ एक साथ होता था, तो इनको जो है सिंगल सिंगल निकालना पड़ता था. यू हैड टू अनटाई द रोप्स एंड ब्रिंग आउट सिंगल सिंगल रोप्स. तो ये था ओकम. तो ओलिवर को काम दिया गया. देखिए, एजुकेशन के नाम पे ओलिवर को क्या दिया गया? इन द नेम ऑफ एजुकेशन ओलिवर वाज गिवन व्हाट? ओलिवर वाज गिवन वर्क. एक 9 साल के बच्चों को काम पे लगाया गया. यू सी 9 year old किड गिवन टू वर्क. और क्या काम? ओकम पिक करना, टू पिक अप ओकम. ठीक है. नाउ Oliver had to do this. Oliver cannot tell no, because otherwise again he will be beaten. So this board of the poorhouse had decided to make the life of the children there more miserable. तो ये board of the poorhouse, ये जो board था, secretary president, this board actually they decided that let us make the life of the children like hell. हम लोग जो है, ये जो बच्चे हम लोगों के पोर हाउस में रहते हैं, let us make their life like hell. हम लोग इनका लाइफ जो है नरक बना देंगे, मिजरेबल बना देंगे. एंड द चिल्ड्रेन वेयर टू बी स्लोली स्टाफ्ड सो दैट दे वुड गो अवे फ्रॉम द पोर हाउस. तो बच्चों को ठीक से खाना हम लोग नहीं देंगे. दे डिसाइडेड दैट वी विल नॉट गिव प्रॉपर फूड टू द चिल्ड्रेन, देन दे विल बी slowly starved. They will not get proper food. They will be hungry all the time. So one by one either they would die, या तो वो मर जाएंगे, नहीं तो वो पोर हाउस छोड़ के चले जाएंगे. अब ये डिसीजन बोर्ड ऑफ पोर हाउस ने क्यों लिया? वाई डिड द पोर हाउस टेक द डिसीजन? लेट मी जस्ट वन सेकेंड एक्सप्लेन यू दिस थिंग. द बोर्ड ऑफ द पोर हाउस डिसाइडेड दैट we will make the life of the children who are here in our poor house, we will make the life of these children like hell, miserable. एकदम ख़राब बना देंगे हम लोग इन बच्चों का हालत ख़राब कर देंगे इन बच्चों का. कैसे ख़राब करेंगे? उनको कम खाना देंगे हम लोग. we will give them less food. तो कम खाना देने से क्या होगा? वो हमेशा भूखे रहेंगे. they will remain hungry all the time. तो हंगर के चक्कर में, हंगर के चक्कर में what they will do is that या तो वो चले जाएंगे पोर हाउस से, या तो वो मर जाएंगे. अब मैक्सिमम चांसेस है दैट दे विल रन अवे. वो लोग वहाँ से भाग जाएंगे. कहाँ भाग जाएंगे? वो बच्चे ही जाने कहाँ भाग जाएंगे. लेकिन खाना कम मिलेगा तो दे विल रन अवे, दे विल गो अवे फ्रॉम द पोर हाउस. तो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? वो लोग ऐसे क्यों करना चाहते थे? व्हाई दिस बोर्ड ऑफ दिस बोर्ड ऑफ द पोर हाउस वांट टू डू दिस? रीज़न क्या है? देखिए, देन दे वोंट हैव टू स्पेंड मनी फ्रॉम द पब्लिक फंड्स. तो पब्लिक फंड्स मतलब गवर्नमेंट फंड्स. तो तब जो है, जो गवर्नमेंट का जो पैसा है, ये लोग भी एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही है. इन वन वे दे आर ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफिसर्स ओनली. सो देन द गवर्नमेंट विल नॉट हैव टू पे मनी. ओके, सो दैट इज वाई दे वांटेड टू स्टार्व द चिल्ड्रन, गिव देम लेस फूड. उनको कम खाना देके उन लोगों को जो है भूखा रखना चाहते. क्यों? ताकि इनके पीछे बेकार में इनके पीछे हम लोगों का पैसा खर्चा हो रहा है. द बोर्ड ऑफ द पोर हाउस दे आर टेलिंग दैट बेकार इन अनाथ बच्चों के पीछे, ऑर्फन बच्चों के पीछे, वी आर वेस्टिंग मनी ऑन दिस ऑर्फन किड्स. ओके, वी विल गिव देम लेस फूड, लेट देम रन अवे फ्रॉम हियर. हम लोगों का पैसा बच जाएगा, आवर पब्लिक मनी विल बी सेव्ड. तो दिस सिस्टम वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months आफ्टर ओलिवर हैड कम देयर. तो ये जो सिस्टम है ये स्टार्ट किया गया कि जब ओलिवर आया, when Oliver came there, तो during the first 6 months after Oliver had come there. तो ओलिवर जिस दिन आया उस दिन से लेके 6 महीने तक ये सिस्टम चालू था. तो ओलिवर केम अंडर दैट सिस्टम ओनली. तो ओलिवर जो है उस सिस्टम का अंदर, बाय डिफॉल्ट ओलिवर केम अंडर दैट सिस्टम. ठीक है. नाउ बच्चों को क्या किया जाता था? देखिए, हाउ डिड दे प्रोवाइड फूड? हाउ डिड द पोर हाउस मास्टर्स प्रोवाइडेड दम फूड? तो उनको 3 वक्त का खाना दिया जाता था. दे यूज टू गिव द बॉयज 3 meals अ डे. ठीक है. दे वर सर्व्ड विथ वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ वाटरी पॉरिज. तो उनको पॉरिज दिया जाता था, वो भी बिल्कुल उसमें पानी ज़्यादा होता था और पॉरिज कम. जैसा आप लोगों को मिलता है ना हॉस्टल का खाना जैसे होता है, मैक्सिमम हॉस्टल जो होता है उनका खाना कैसे होता है? आपको दाल दिया गया, इफ़ यू गिवन दाल पल्सेस, तो दाल में जो है पानी ज़्यादा, वाटर इज़ मोर,
and dal is less. Water 85%, दाल ओनली 50%, 15%. ठीक है ना, तो आपको पानी का ही टेस्ट मिलेगा, कहाँ दाल, आपको दाल का टेस्ट आपको मिलेगा. तो सेम थिंग, पोरिज इज लेस एंड वाटर इज मोर, सो इट इज़ लाइक वाटरी पोरिज. तो द अमाउंट ऑफ फूड नेवर सैटिएटेड देयर हंगर. तो इतना कम खाना दिया जाता था, सच अ स्मॉल अमाउंट, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड वाज गिवन टू द चिल्ड्रन दैट दे ऑलवेज रिमेन हंग्री. एंड दिस वाज द ट्रिक ऑफ द पुअर हाउस बोर्ड, दैट ये तो हम लोग चाहते हैं कि ताकि बच्चे भूखा रहे, और वो लोग ज़्यादा भूखा रहेंगे तो एक दिन न एक दिन तो वो लोग भाग जाएंगे यहाँ से, दे विल रन अवे फ्रॉम हियर एंड आवर मनी विल बी सेव्ड. आवर मनी विल बी सेव्ड, इतने सारे पैसे हम लोगों को बच जाएगा, और हम लोग उन पैसों से जो है चिकन, मटन, बिरयानी ये सब खा पाएंगे. वी विल बी एबल टू हैव सो मच ऑफ फूड. ठीक है ना. तो वन डे यू सी, बिकॉज ये जो कम खाना मिलते मिलते जो है सारे बच्चे जो है बहुत जो है फ्रस्ट्रेटेड हो गए. ऑल द orphan boys, they got frustrated. अब they are frustrated but they cannot tell anything to anybody because they will be beaten otherwise. तो किसी को वो कुछ बोल तो नहीं सकते. तो एक दिन एक लंबा सा बच्चा है, one tall boy said that अगर आज मुझे एक बाउल से ज़्यादा सेकेंड बाउल ऑफ पोरिज अगर मुझे नहीं मिला, इफ़ आई डिड नॉट गेट अ सेकेंड बाउल ऑफ पोरिज, बिकॉज दे वर गिवन ओनली वन बोल, दे गॉट ओनली वन बोल. उनको एक छोटा सा जो है बोल में जो है पोरिज दिया जाता था, वाटरी पोरिज दिया जाता था. तो दैट नेवर सेटिस्फाइड देयर हंगर. भूख तो उनका मिटता नहीं था. तो एक लंबे बच्चे ने एक दिन कहा कि अगर मुझे आज एक से ज़्यादा बोल, मतलब सेकेंड बोल ऑफ पोरिज मुझे अगर नहीं मिला, तो मैं जो हूँ आई विल ईट अ स्मॉल बॉय हु स्लीप्स नेक्स्ट टू मी. जो मेरे पास जो कोई भी मेरे पास कोई छोटा बच्चा मेरे पास सोएगा, मैं उसको खा जाऊँगा, बिकॉज आई एम हंग्री एंड आई नीड फूड. तो अगर मुझे सेकेंड बाउल ऑफ पोरिज नहीं मिला, तो मेरे पास जो भी एक छोटा बच्चा सोएगा, एनी स्मॉल बॉय हु वुड स्लीप नेक्स्ट टू मी, आई विल ईट हिम अप. और सारे बच्चे जो है दे गॉट अफ्रेड. ऑल द बॉयज यू सी, दे बिलीव द टॉल बॉय एंड दे ऑल बिकेम अफ्रेड. अरे ये सचमुच का भूखा है, ही इज़ रियली वेरी हंग्री. तो हम लोग में से जो सबसे छोटा है, अगर इसके पास जो है, अगर सचमुच इसने हम लोगों को मुझे खा लिया, तो सबसे जो छोटा बच्चा है वो he started thinking, so they became afraid. तो these boys actually they held a meeting. ये जो सारे बच्चे हैं इन लोगों ने मिलके एक सीक्रेटली एक मीटिंग कंडक्ट किया, और थ्रू अ लॉट मतलब लॉटरी, थ्रू अ लॉटरी इट वाज डिसाइडेड दैट ओलिवर वुड आस्क फॉर अ सेकेंड बॉल ऑफ पोरिज. लॉटरी होता है ना कि एक पेपर पे आप जो है एक चीट ऑफ पेपर रखिए, स्मॉल चीट्स ऑफ पेपर यू राइट, और एक पेपर में आपने एक मार्क कर दिए, जस्ट मार्क वन पेपर. ओके, एंड ऑल द बॉयज़ वुड स्टैंड इन अ सर्कल. सारे बच्चे जो है वो सर्कल में खड़े हो जाएंगे, एंड वन दे वुड कम एंड पिक द पेपर. जो जिसके हाथ में ये सर्कल वाला पेपर मिला, ही वुड बी द बकरा, ही वुड बी द स्केप गोट. बलि का बकरा हम लोग कहते हैं ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्केप गोट. तो ही वुड बी अ स्केप गोट. तो ये गिरना था, ये लॉटरी किसके ऊपर गिरा? इट फेल ऑन दिस लॉट फेल ऑन ओलिवर. नाउ ओलिवर had to ask for second bowl of porridge, and it was completely they had warned everybody that no one can ask for more than one. कोई भी more than one bowl ask नहीं कर सकता. No one can ask for more than one bowl, because if you ask for more than one bowl you'll be punished like hell. लेकिन आप क्या करें, ओलिवर कि जो है थ्रू अ लॉटरी इट वाज डिसाइडेड, एंड ओलिवर को अभी जाना था. तो लॉट फेल ऑन ओलिवर. तो ड्यूरिंग द मील टाइम एवरीवन्स आइज वेर ऑन ओलिवर. तो जब सब लोग खाना खा रहे थे, व्हेन ऑल द बॉयज वेर एक्चुअली ईटिंग, सो एवरीबडीज आइज वेर ऑन ओलिवर. तो सब लोग जो है ओलिवर की तरफ जो है देख रहे थे कि अब ओलिवर जाएगा, नाउ ओलिवर विल गो एंड आस्क फॉर मोर पॉरिज, नाउ ओलिवर विल गो एंड आस्क फॉर मोर पॉरिज. ओके, तो ओलिवर का जो है पहला बाउल जो है वो ख़त्म हो गया. द फर्स्ट बाउल गॉट ओवर. नाउ एवरीबडी वाज लुकिंग एट ओलिवर. सब लोग जो है ओलिवर की तरफ देख रहे हैं, ओलिवर को तो जाना ही है. तो ओलिवर वेंट एंड आस्क्ड फॉर मोर पॉरिज. तो ओलिवर गया और कहा कि कैन आई गेट सम मोर पॉरिज. ओके, कैन आई गेट सम मोर पॉरिज. तो अब जो है जिसके पास उसने जाके कहा, द मास्टर एक्चुअली ही वॉज अ वेरी फैट. ओके, जो मास्टर था जो पोरिज दे रहा था, एक्चुअली द मास्टर हु वाज गिविंग द पोरिज, ही बिकेम सो एंग्री. एंड देयर इज अ पिक्चर इन योर बुक इन पेज नंबर 5
पेज नंबर 5 में आप एक पिक्चर देख सकते हैं आपके किताब में. ओके, तो व्हेन ही वेंट एंड सेड प्लीज सर आई वांट सम मोर. तो द मास्टर सेड व्हाट डिड यू से? And Oliver said, please sir, I want some more. And then this fat man, this master, became so angry. So angry. He was like, what did you say? And then Oliver again said, please sir, I want some more. And the master did what you see. When Oliver asked for the second bowl of porridge, please sir, I want some more porridge. Master became extremely furious, extremely angry. और उसके हाथ में एक डंडा था या फिर कोई बर्तन होगा. He aimed a blow at Oliver's head. तो उसने जो है ओलिवर के सर पे जो है he you know made a blow. उसने he aimed a blow. उसने एक जो है डंडा घुमा दिया ओलिवर के सर पे. तो सर के ऊपर से चला गया वो. तो then Oliver did what? Then the master did what? Master held Oliver by the arms and shouted for the beadle. beadle यहाँ पे कौन? Mr. Bumble. ठीक है, तो I'm sorry, Mr. Bumble. Okay, he is the beadle. So this master became so angry that the master उसने जो है ओलिवर का दोनों हाथ पकड़ लिया. He caught Oliver's arms and shouted, Mr. Bumble, please come fast. Oliver has committed a crime. Oliver ने एक बहुत बड़ा crime commit कर लिया. अब जल्दी आइए. अब crime किया. Again, look at the crime. Because he asked for a second time. आप सोचिए, tomorrow your friend invited you for his birthday party and you go him and he gives you one piece of cake and you like the taste of the cake very much and you asked your friend, can I get another piece of cake? And suddenly if your friend starts shouting, it is a crime to ask for a second piece of cake, how will you feel? Is it a crime? Obviously not. We can easily understand this, but this is the system of the poorhouse, how corrupted the system is. कितना ख़राब सिस्टम है ये पोर हाउस का, आप देखिए. तो एनीवेज द बीडल वाज कॉल्ड. नाउ ओलिवर को पनिशमेंट देना था. तो देखिए इतने छोटे से चीज़ के लिए द बोर्ड ऑफ पोर हाउस दे हेल्ड अ मीटिंग कंडक्ट किया गया. जैसे कि कितना बड़ा क्राइम हो गया, सच अ बिग क्राइम हैज़ बीन कमिटेड दैट दे कंडक्टेड अ मीटिंग. एंड इन दैट मीटिंग द चेयरमैन एक्सक्लेम्ड इन एंगर एट ओलिवर्स ऑडेसिटी. ओलिवर के ये जो साहस है कि हाउ कैन ओलिवर आस्क फॉर मोर porridge. This is crime. And all all of them started shouting. So one member from the board, एक member जो है उस board में उठा and he shouted, no, the boy should be hanged. लड़के को फांसी पे लटका दो. You can imagine that they are talking about hanging Oliver. फांसी पे लटकाने का बात वो लोग कर रहा है. Okay, किसके लिए, किस चीज़ के लिए? For what? Because Oliver had asked for one extra bowl of porridge. सिर्फ एक extra bowl of porridge मांगने के लिए Oliver को जो है फांसी पे लटकाने की वो लोग बात करें. They are telling that Oliver should be hanged. Just imagine, man. Just imagine. So Oliver received punishment. Oliver was locked up and made to spend the night alone. Oliver को जो है पूरे रात जो है लॉक करके रखा गया. And he was made to spend the night all alone. तो बाकी बच्चों से उसको अलग कर दी. He was separated from the rest of the kids and he was locked up. ठीक है. तो नेक्स्ट मॉर्निंग को क्या किया गया? Oliver was locked up the whole night and he was made to spend alone, as I told you. So नेक्स्ट मॉर्निंग जो है बाहर एक नोटिस लटकाया गया. Was put outside the gate offering 5 pounds to anyone who would take Oliver from the poor house. तो जो भी ओलिवर को वहाँ से लेके जाएगा उनको 5 पाउंड दिया जाएगा. ओके, ऑफरिंग 5 पाउंड्स टू एनीवन हु वुड टेक ओलिवर फ्रॉम द पोर हाउस. तो ओलिवर को वो लोग भगा रहे थे एक्चुअली. दैट यू टेक ओलिवर, एनीबडी हु वुड टेक ओलिवर, दैट पर्सन वुड बी गिवन 5 पाउंड्स. उनको 5 पाउंड्स दिया जाएगा. ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गई ये चीज़. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ऑल्सो. ओके, सो टेक ओलिवर एंड गेट 5 पाउंड्स. ठीक है. तो अब जो है एक मिस्टर सावरबेरी नाम का जो है एक लोकल अंडरटेकर है. अंडरटेकर एक्चुअली वो रेसलिंग वाला अंडरटेकर नहीं. ठीक है, यहाँ पे अंडरटेकर का मीनिंग है, किसी किसी को लगता है कि वो अंडरटेकर होगा, वो जो केन का भाई है अंडरटेकर, WWE का, वो वाला अंडरटेकर नहीं. यहाँ पे अंडरटेकर मतलब अ पर्सन हु ऑर्गेनाइजेस फ्यूनरल. इट इज़ नॉट दैट रेसलिंग वाला अंडरटेकर. ओके, एनीबडी हु ऑर्गेनाइजेस इन क्रिश्चियन टर्म्स, इन क्रिश्चियनिटी, एनीबडी हु ऑर्गेनाइजेस फ्यूनरल. जो कबर खोदता है ना, आप देखते हैं ना, कबर खोदने वाला एक आदमी होता है चर्च ग्रेव यार्ड में. ओके,
कबर खोदता है, कॉफिन वगैरह अरेंज करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एन अंडरटेकर. सो मिस्टर सावरबरी वॉज अ लोकल अंडरटेकर एंड ही टुक ऑलिवर एंड ही गॉट 5 pounds फ्रॉम द पुअर हाउस. तो वो ऑलिवर को लेके गया, उसको काम करने वाला लड़का भी चाहते, ही नीडेड यू नो a boy as like an assistant. So he took Oliver and he got 5 pounds also. He read the notice, he took Oliver and he got 5 pounds also. Now you see in Mr. Sowerberry's house also, Mr. and Mrs. Sowerberry, दोनों जो husband wife थे, Mr. and Mrs. Sowerberry, they were very very अनकाइंड टू ऑलिवर, बहुत अनकाइंड थे वो. दे यूज टू बीट ऑलिवर, इवन देयर मेड ऑल्सो. उनके जो घर पे नौकरानी थी, उसका जो नाम है वो शार्लट है. ओके, शार्लट. एंड देयर वाज अनदर वर्कर कॉल्ड नोआ क्लेपोल. तो ये चारों जो है, ऑल दिस फोर एक्चुअली, मिस्टर एंड मिसेस सावरबेरी, देयर मेड शार्लट, एंड देयर वाज अनदर वर्कर, एन अप्रेंटिस ऑफ मिस्टर सावरबेरी, नोआ क्लेपोल उसका नाम था. ये चारों मिलके जो ऑलिवर पे बहुत टॉर्चर करते थे. ऑल दिस पीपल वुड टॉर्चर ऑन ऑलिवर. दे वर वेरी अनकाइंड टू हिम. दे नेवर टॉक नाइसली टू ऑलिवर. कोई भी जो ऑलिवर से अच्छे से बात नहीं करता था. दे ऑलवेज ऑलिवर वॉज ऑलवेज कर्स्ड एंड बीटन. तो ऑलिवर को हमेशा वो लोग खराब बात बोलते थे. दे यूज्ड टू कर्स हिम, चुल्लू पर पानी में डूब मर, तुम मरता क्यों नहीं, वाई डोंट यू डाई, ओके, and this and that, and they always used to beat Oliver, and Oliver used to listen to all these things. He used to even tolerate all the beatings also. And what kind of food was given to Oliver? Oliver को क्या खाना दिया जाता? See, you can never imagine this thing in your life. You can never imagine this thing in your life. Okay, the food that was given to Oliver, actually, that food even the dog did not eat. कुत्ता भी जो है वो खाना नहीं खाता था, और वो खाना ऑलिवर को दिया जाता था. जो खाने का टुकड़ा वुकड़ा हम लोग फेंक देते हैं ना, द स्क्रैप्स ऑफ फूड दैट वी थ्रो अवे, इवन डॉग्स ऑल्सो डोंट टच दैट फूड, एंड दैट फूड वॉज गिवन टू ऑलिवर. Just imagine the kind of unkindness. Just imagine the kind of any inhuman behavior that was done on Oliver, that was done to Oliver. Just आप सोचिए सिर्फ. He was made to sleep under the workshop bench among the coffins. और Oliver को सोने के लिए क्या मिलता था? बिस्तर मिलता था आराम से. Was he given bed of roses to sleep on? Never. He used to sleep under the bench. वो bench के नीचे सोता था. And near him there used to be कॉफिन्स. उसके आसपास जो है कॉफिन्स रहता था, जहाँ जो है मुर्दे को डेड बॉडीज आर पुट इनसाइड दैट कॉफिन. So he used to sleep with the coffins under the bench. Okay. Now one day what happened is that one day a very serious incident happened in the house of Mr. Sowerberry. Mr. Sowerberry के घर पे एक दिन एक बहुत बहुत खराब एक इंसिडेंट हुआ. क्या हुआ कि डिनर टेबल पे everyone they were sitting, and not everyone, I'm sorry, Noah Claypole was eating his dinner, and Oliver was also having his dinner. Now suddenly what happened, Noah Claypole insulted Oliver's mother, and he used foul words, okay, curse words, bad words for Oliver's mother. And as we already know that Oliver's mother is dead. Oliver is an orphan. Oliver does not have a mother or a father. So Oliver now felt very insulted. And see, all the time तो Noah Claypole, then Charlotte the maid, जो नौकरानी थी Charlotte, they used to insult, beat Oliver all the time. But this time Noah Claypole crossed his limits. Noah Claypole ने अपना लिमिट क्रॉस कर लिया, और ऑलिवर की मम्मी के बारे में, डेड मदर के बारे में, he started using bad words, foul words, curse words. And Oliver could not bear this and attacked Noah. Oliver को इतना गुस्सा है, he got so angry that he could not tolerate this, and he attacked Noah Claypole. उस एकदम टेबल के ऊपर से उठ के जो है he jumped over the table and attacked Noah. Now what happened is that Noah started shouting, and Mr. and Mrs. Sowerberry and Charlotte, ये तीनों मिलके जो है Noah started shouting like help, 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 like that. And then Mr. and Mrs. Sowerberry came. Charlotte, their maid also, जो नौकरानी थी, वो भी दौड़ के चली आई, एंड दे ऑल थ्रैश्ड पुअर ऑलिवर. वो उन तीनों ने मिलकर ऑलिवर को उस दिन बहुत पीटा, बहुत मारा. दे ऑल थ्रैश्ड ऑलिवर लाइक एनीथिंग. एंड देन क्या किया, उसके बाद क्या किया, आफ्टर दैट व्हाट दे डिड, ही वाज लॉक्ड इन द कोल सेलर. फिर से जो है उसको एक कोयले के कमरे में, इन अ कोल सेलर ही वाज लॉक्ड. ओके. एंड नोआ, तो मिस्टर एंड मिसेस सावरबेरी ने कहा, नोआ यू गो एंड कॉल मिस्टर बम्बल. आज इसका फैसला होना ही चाहिए, आज इसका फैसला जो है होना ही चाहिए. टुडे वी मस्ट सेटल दिस थिंग डाउन. तो नोआ यू गो, यू कॉल मिस्टर बम्बल. एंड नोआ वेंट, ही कॉल्ड मिस्टर बम्बल. मिस्टर बम्बल केम,
मिस्टर बम्बल ने भी ओलिवर को बहुत मारा. मिस्टर बम्बल ऑल्सो बीट ओलिवर लाइक एनीथिंग. ओके, तो ओलिवर को फिर से जो है ही वॉज लॉक्ड अप फॉर द रेस्ट ऑफ द डे विथ जस्ट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड. just imagine the torture, the inhumanity that Oliver had to bear, okay, or was bearing. ओलिवर को एक छोटे से ब्रेड के टुकड़े के साथ पूरा दिन जो है ओलिवर को ही वॉज लॉक्ड अप इनसाइड द कोल सेलर, इनसाइड द वो जो कोयले का कमरा है, जस्ट एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा देके उसको बंद कर दिया गया उस कोयले के कमरे में. ओलिवर वेप्ट बिटरली दैट नाइट एंड डिसाइडेड टू रन अवे अर्ली मॉर्निंग. तो ओलिवर ने कहा बहुत हो चुका है, इनफ इज इनफ. Oliver cried like anything. He had never received love, care from anybody. बचपन से लेके अब तक, he is a 9-year-old boy. He never received any kindness, any love from anybody. Mrs. Mann, Mr. Bumble, then the board in the poor house, Mr. and Mrs. Sowerberry now, शार्लोट, नोआ क्लेपोल, इन सारे कैरेक्टर्स और जो बाकी जो कैरेक्टर्स जितने भी हैं, ओलिवर नेवर गॉट लव फ्रॉम ऑल ऑफ देम. सो ओलिवर वेप्ट बिटरली दैट होल नाइट ही क्राइड एंड देन ही डिसाइडेड नो, इनफ इज इनफ, आई एम गोइंग टू रन अवे फ्रॉम हियर. टुमारो अर्ली मॉर्निंग बिफोर एवरीवन वेक्स अप, सबके जो है नींद टूटने से पहले, सबके उठने से पहले, एकदम अर्ली मॉर्निंग आई विल रन अवे फ्रॉम हियर. तो दूसरा दिन जो है ओलिवर जो है जैसे तैसे मैनेज करके दरवाज़ा खोला और वो निकल गया. ही रैन अवे. नाउ वी कम टू चैप्टर 2. चैप्टर 2 इज क्वाइट स्मॉल. आई विल एक्सप्लेन यू इन ब्रीफ, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. ओके, ओलिवर वॉज वॉकिंग फॉर 7 days. आप सोचिए कि वो लंदन जाने के लिए निकला. एग्जैक्टली नॉट लंदन, इट इज़ अ टाउन कॉल बार्नेट. तो एक बार्नेट बोल के एक टाउन है जो लंदन के आसपास है, विच इज़ नियर लंदन. देयर इज अ टाउन कॉल बार्नेट एंड ओलिवर वॉज वॉकिंग टू बार्नेट and he was walking. He did not take any vehicle. अगर मुझे यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर मुझे गुवाहाटी जाना है फ्रॉम शिलोंग से, फॉर एग्जांपल 2 घंटा लगता है गुवाहाटी से शिलोंग, राइट? ओके, दोज ऑफ यू हु स्टे इन शिलोंग, गुवाहाटी. और अगर तुरा से शिलोंग जाना है तो कितना टाइम लगता है? अराउंड 9 hours, 9 घंटा लगता है फ्रॉम तुरा टू शिलोंग. अब मैं तो रहता हूँ मेघालय में. मेघालय की किस जगह में रहता हूँ ये तो मैं आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं सर आप कहाँ रहते हैं, और फ्रॉम तुरा. नो सर, मैंने आपको देखा है कहीं पे तो देखा है. यू स्टे इन शिलोंग? नो सर, मैंने आपको देखा है शिलोंग में. सर यू स्टे इन तुरा? नो सर, आई हैव सीन यू इन तुरा. अब मैं मेघालय का, मैं एक मेघालयन हूँ. आई एम अ मेघालयन. ओके, इफ़ यू आस्क माई एड्रेस आई वुड से मेघालय. ओके, सो आई एम बेसिकली अ मेघालयन एक्चुअली. एंड यू सी ये प्लेस जो है ये थोड़ा सा सीक्रेट में रखना चाहता हूँ आप सब लोगों से. हालांकि बहुत लोगों को पता है, बट मैं चाहता हूँ वो लोग कमेंट में ना ये सब दे, फिर जो है गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है ना? स्टूडेंट्स जो है वो मिलना चाहेंगे ये वो, तो जो भी हो, वट एवर इट इज़. सो ओलिवर जो है, तो यहाँ से अगर से फॉर एग्जांपल इफ़ आप अगर शिलोंग से तुरा आना चाहे, 9 घंटा लगता है बस में. इट टेक्स 9 hours इन बस. विल यू बी एबल टू वॉक ऑल ओवर एंड कम टू तुरा? इम्पॉसिबल. यू विल नेवर डू दैट. कौन करेगा ये? 9 घंटा बस में ही लगता है. आप सोचिए उधर से पैदल आएंगे, कितना दिन आपको लग जाएगा तुरा पहुँचने में और तुरा पहुँचने के लिए. तो ओलिवर did not have any other means. तो वो 7 दिन तक चलता रहा. He kept walking and walking and walking, and on the 7th day his condition became very bad. After walking his legs were injured. उसका पैर जो है वो छिल गया. His legs became injured. He was limping now. वो लंगड़ा के चल रहा था. He was limping. And finally on the 7th day he reached a little town called Barnet. Please remember this. On which day? On the 7th day he reached a little town called Barnet. And Oliver was walking for how many days? He was walking for 7 days. On the 7th day he reached a little town. And what is the name of the town? The name of the town is Barnet, which is near London. Please choose the correct answer के लिए बहुत ज़्यादा important है ये. His feet was bleeding. उसके पैरों से खून निकल रहा था. His feet was bleeding and he was covered with dirt. पूरा जो है उसका जो कपड़ा है वो पूरा गंदा हो चुका था. Because he was walking for 7 days without bath, without washing face, without washing his teeth. He was just walking and walking and walking, and it was cold also. So finally he reached Barnet and वो एक दरवाजे के बाहर जाके बैठ गया. कोई दुकान होगा. It could be a shop. ओके, इट कुड बी अ शॉप. तो दुकान के बाहर जो सीढ़ियाँ होता है ना, द स्टेयर्स आउटसाइड अ शॉप, ही वेंट एंड ही सैट देयर.
दरवाजे के बाहर वो बैठ गया एंड इट वॉज वेरी कोल्ड, ही वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड, हिज लेग वॉज ब्लीडिंग एंड ही वॉज इन पेन, वो बहुत दर्द में था, एंड ही वॉज सिटिंग ऑन अ डोर स्टेप। ही वॉज टू टायर्ड टू इवन बेग, वो भीख मांगने के लिए भी उसका ओलिवर्स कंडीशन वॉज सो बैड दैट ही वॉज नॉट ही वॉज टू टायर्ड टू इवन बेग ऑल्सो, भीख मांगने के लिए भी जो है उसका बॉडी का हालत नहीं था, हिज बॉडी कंडीशन वॉज सो बैड दैट ही इवन कुड नॉट, ही इवन कैन नॉट बेग ऑल्सो, ठीक है ना। तो वो बैठ गया। तो व्हाट हैपन, ओलिवर ने नोटिस किया, ओलिवर सडनली नोटिस दैट एक लड़का उसको बहुत देर से देख रहा है। वन बॉय वॉज कंटिन्यूसली स्टेयरिंग एट हिम, और वो जो लड़का है दैट बॉय इज एंड ओलिवर्स एज आर सेम। तो उस लड़के का और ओलिवर का जो एज लगभग एक ही है, सेम है। ओके, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ, दिस बॉय वॉज जैक डॉकिंस। ये जो लड़का है इसका नाम जैक डॉकिंस है, और उसको जो है आर्टफुल डॉजर भी कहा जाता है। रिमेंबर हु इज नोन एज द आर्टफुल डॉजर, आंसर इज जैक डॉकिंस। चूज द करेक्ट आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, आप लोग इसको याद रखिए। हु इज नोन एज द आर्टफुल डॉजर, इट इज जैक डॉकिंस, DODGER। या फिर अगर इसको घुमा के पूछा गया, इफ दे आस्क इन अ ट्विस्टेड मैनर दैट what was Jack Dawkins called, you say that he was called the artful dodger। अब उसको artful dodger क्यों कहा गया, why was he called the artful dodger, nickname artful dodger क्यों कहा गया, we will learn it later। okay, आज नहीं, हम लोग ये, मैं जो दूसरा वीडियो लाऊंगा मैं वहाँ आपको बताऊंगा कि उसको artful dodger क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो नाउ जैक डॉकिंस, जैक जो है वो ओलिवर के पास आए। ही केम नियर ओलिवर एंड आस्क्ड, हे बॉय व्हाट हैपेंड टू यू, आर यू इन एनी ट्रबल, तुमको कोई तकलीफ है क्या लड़के। जैक वॉज टेलिंग ओलिवर, और ओलिवर के आंखों में आंसू। ओलिवर रिप्लाइड इन टीयर्स दैट आई एम टू टायर्ड एंड आई एम वेरी वेरी हंग्री एंड आई हैव बीन वॉकिंग फॉर 7 days। मैं 7 दिनों से जो है ऐसे एक जगह से पैदल चल के आई केम वॉकिंग ऑल द वे एंड इट टुक मी 7 days टू रीच बार्नेट। मैं बार्नेट जो है ये आज 7th डे है, और मैं 7 दिन से जो है चल चल के मैं थक चुका हूँ, एंड आई एम वेरी टायर्ड ऑल्सो, आई डिड नॉट गेट प्रॉपर फूड एंड आई एम वेरी टायर्ड एंड हंग्री। तो जैक जो है वो झट से वो गया, ही इंस्टेंटली वेंट एंड ही बॉट हैम एंड ब्रेड फ्रॉम अ नियर बाई शॉप। तो एक पास ही में कोई दुकान था, फ्रॉम अ नियर बाई शॉप, तो जैक बॉट हैम एंड ब्रेड, ओके, खाने का आइटम्स, ham and bread for Oliver। एंड आफ्टर दैट ही टुक ओलिवर टू अ स्मॉल पब्लिक हाउस। पब्लिक हाउस एक ऐसा जगह है जहाँ पे जो है अल्कोहल्स वगैरह जो मिलता है, बियर, अल्कोहल, विस्की, ये सब मिलता है, पब्लिक हाउस, ठीक है। तो ही टुक ओलिवर टू अ स्मॉल पब्लिक हाउस, तो वो ओलिवर को एक छोटे से ऐसे पब्लिक हाउस में लेके गया, एंड देयर ओलिवर हैड अ पॉट ऑफ बियर। तो ओलिवर ने बियर पिया और ओलिवर ने खाना भी खाया, एंड एवरीथिंग वाज प्रोवाइडेड बाय जैक डॉकिंस ओनली। तो जैक डॉकिंस ने ही सब कुछ प्रोवाइड किया ओलिवर को। तो ओलिवर को जो है इतना दिन बाद जो है एक दोस्त मिला, ही गॉट अ फ्रेंड, एंड ओलिवर वाज लाइक क्वाइट हैप्पी। एंड देन आफ्टर दैट लाइक जैक आस्क्ड ओलिवर के तुम कहाँ रहते हो। तो ओलिवर ने कहा आई डोंट हैव एनी प्लेस टू स्टे, मेरे रहने का कोई जगह नहीं। तो फिर जैक टोल्ड ओलिवर तो मेरे साथ आओ, यू कम विथ मी, आई विल टेक यू समवेयर। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहाँ पे तुमको जाके जो है अच्छा लगेगा, you'll feel nice, okay, come with me। so Oliver also felt very nice that चलो चलते हैं फिर, let's go। and then after that Jack took Oliver to Faggin's place। अब ये फैगिन कौन है हम लोग जानेंगे, फैगिन कौन है, ठीक है। आज शायद ज़्यादा इंट्रोडक्शन फैगिन के बारे में मैं नहीं दूंगा, आई विल नॉट गिव बिकॉज इट इज़ नॉट देयर इन चैप्टर 2, बट इन चैप्टर 3 वी विल लर्न दिस थिंग, ओके। नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 3 जब मैं लाऊंगा देन आई विल एक्सप्लेन यू। सो एनीवेज, तो दे नाउ केम टू फैगिन्स हाउस। तो वो लोग जो है एक गली से गुजर के स्मॉल थ्रू अ स्मॉल पैसेज वे, एकदम डर्टी पैसेज वे, जैक एंड ओलिवर दे वॉक्ड, okay, they were walking। तो that locality was very bad actually, okay, people were drunk, one person was like lying on the ground completely drunken, पूरा जो है शराब पी के धुत होके जो है रास्ते के किनारे वो गिरा हुआ था। then some children were playing, like it's a very bad kind of a colony, एक बहुत bad kind of locality है, okay, I would call it locality not colony, एक बैड काइंड ऑफ लोकेलिटी है। तो उस लोकेलिटी से गुजर के क्रॉसिंग दैट लोकेलिटी नाउ केम फैगिन्स हाउस। तो फैगिन का घर आया अभी,
ठीक है, तो घर जो है वो इट इज़ ऑन द फर्स्ट फ्लोर. तो एनीवेज देयर ही सॉ अ वेरी, नाउ दे एंटर्ड इनसाइड. तो वो लोग जो है जैक एंड ऑलिवर दे एंटर्ड इनसाइड द हाउस. एंड देयर ऑलिवर ने देखा क्या, ऑलिवर सॉ अ वेरी ओल्ड श्रिवल्ड एंड विलेनस लुकिंग जू. तो ऑलिवर ने देखा एक बुढ़ा सा आदमी, अजीब सा दिखने वाला बुढ़ा आदमी, वेरी स्ट्रेंज लुकिंग ओल्ड मैन, एंड ही लुक लाइक अ विलेन. जो हम लोग हिंदी मूवी में जो विलेन देखते हैं, एकदम भद्दा सा दिखने वाला विलेन, दैट ओल्ड मैन लुक लाइक that villain only. Okay, and this was actually Fagin, and he had a horrible face and he wore a greasy flannel gown. तो उसका चेहरा जो है बहुत भद्दा सा चेहरा था. दिस फैगिन हैड अ वेरी हॉरिबल फेस, एंड उसने जो एक बहुत डर्टी सा फ्लैनल के कपड़े का जो है गाउन पहना होता. फ्लैनल इज अ टाइप ऑफ अ क्लोथ, ओके, लाइक सिल्क, कॉटन, सो फ्लैनल. ओके, तो एक बहुत गंदा सा डर्टी फ्लैनल गाउन फैगिन वॉज वेयरिंग. So he was Fagin, okay? Jack Dawkins then introduced Oliver to all the members present inside the house. All of them welcomed Oliver. So Jack Dawkins then introduced, hey guys, please come over here. I have brought somebody with me. His name is Oliver. And everyone started welcoming Oliver. Oh, Oliver, yes, come on, welcome to our house, welcome to our group, welcome to our house. Okay, we are very happy to have a friend like you and all these things. They helped him empty his pockets, hang his cap, and shake hands with him. So, they all came near Oliver. They all surrounded Oliver. So Oliver was in the middle, and all the boys, they surrounded Oliver. Okay, and whatever was there in Oliver's pockets, they all emptied his pockets. Ke, chalo, Oliver, come on, relax. Come on, whatever is there in your pockets, take it out. Come on. And they took everything outside, from his pocket. One person came and said, "Arey Oliver, you are wearing a cap. Come on, give me this cap. I will hang your cap here. Relax. In our house, you are like one of our members only. तुम लोग जो है, तो तुम जो हो वो हमारे members दोस्त जैसे हो, तो come on, relax, okay." And they all came and shook hands with him. तो सारे जो जितने भी वहाँ पे members थे, ज़्यादातर बच्चे थे, all of them were kids only Fagin was the elder person. तो सारे जो आए, they started shaking hands with Oliver and welcoming him. Okay, now Oliver जो है, there were very beautiful handkerchiefs kept. तो बहुत जो सुंदर सुंदर रुमाल जो है रखा हुआ था वहाँ पे, वेरी ब्यूटीफुल हैंकरचीफ्स केप्ट, एंड ऑलिवर वाज लुकिंग एट दोस हैंकरचीफ्स. तो फैगिन नोटिस दिस, फैगिन ने ये नोटिस किया कि ऑलिवर जो है बहुत देर से ही इज़ लुकिंग एट, ही स्टेयरिंग एट द हैंकरचीफ्स. तो फैगिन ने क्या कहा, देखिए व्हाट डिड फैगिन से. फैगिन सेड दैट अरे देयर आर मेनी सच हैंकरचीफ्स एंड दीज हैंकरचीफ्स हैव बिकम वेरी डर्टी, सो these handkerchiefs are meant to be washed. तो ये हैंकरचीफ जो है, ऐसे बहुत सारे ब्यूटीफुल हैंकरचीफ्स मेरे पास है. एंड एक्चुअली दिस हैंकरचीफ जो है, ये जो रुमाल तुम देख रहे हो, ये हम लोगों ने धोने के लिए रखा है, ये डर्टी हो गया है. ओके, एंड देन आफ्टर दैट दे ऑल सैट डाउन फॉर सपर, एंड आफ्टर दैट ऑलिवर स्लेप्ट डीपली. तो सारे जो है फिर दे टॉक्ड फॉर सम टाइम्स, एंड देन दे ऑल सैट डाउन फॉर सपर. तो डिनर के बाद सपर आता है, तो वो लोग जो है सपर करके रात को एट नाइट दे हैड देयर सपर. एंड देन आफ्टर दैट ऑलिवर वाज लाइक, पूरा पेट भर के ऑलिवर के, इतना दिन बाद ऑलिवर ने पेट भर के खाना खाया, आफ्टर सो मेनी डेज, नॉट डेज, आफ्टर सो मेनी ईयर्स एक्चुअली ऑलिवर हैड, ऑलिवर वाज सेटिस्फाइड विद द फूड एंड ऑलिवर एट टू हिज हार्ट्स कंटेंट. तो पूरा एकदम मन की सुख से उसने खाना खाया और वो पूरे डीप स्लीप में चला गया. ही वेंट to a deep sleep. So he slept deeply. ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों का चैप्टर 1 और 2 ख़त्म हो जाता है. ओके, सो चैप्टर 1 and 2 ends here. So in the next video I'll be bringing up chapter 3, chapter 4 and it will continue. तो मैं दो चैप्टर्स, तीन चैप्टर्स करके जो है कंबाइन करके I will cover up only the important things for you to understand. Okay, so that's all from me. I hope you have understood the story, and if there is any problem you can comment me in the comment box. And like तो बनता है, थोड़ा like कर दिया करो सब लोग. ओके, सारे बच्चे जो है थोड़े like कर देंगे तो I will get motivation also. Whenever you watch the video, just click the like button. Okay, I feel good actually. I feel good. मुझे अच्छा लगता है. ठीक है, तो that's all from me for today. Please subscribe to the channel if you have not subscribed. लाइक द वीडियोस, लाइक तो बनता है जैसे मैंने आपको कहा, और मेरी वीडियोस को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में. प्लीज़ शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड टेल देम टू सब्सक्राइब ऑल्सो. योर एग्जाम्स आर कमिंग वेरी नियर एंड आई एम गोइंग टू कंप्लीट द होल कोर्स फ्रॉम योर English 1. And now I have started Oliver Twist. I will complete Oliver Twist also.
Okay. Very soon I will complete Oliver Twist, and then I will be bringing up multiple choice questions, important questions and answers, and I will prepare you fully for your 2022 final exams. Just keep on watching my video and trust me, as I always say. So that's all. Thank you. With love from Omnigyan, and all the best to all of you.